can ask me anything if you wanted to related to chapter number 4. जी चले जी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं जब तक, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। जी इस दफा आपके मार्क्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे। एग्जाम वुड कैरी योर 40% ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। देन योर क्लास वर्क एंड होमवर्क will carry 10% of your marks. Your attendance will carry 10% of your marks. Your class participation will carry 10% of your marks. Your test and your assignments will carry 30% of your marks, and this will give you 100%. Yes. जी किसी को कोई Sir, I have one query. Yes, you can ask. Sir, exercise 4D, question number 3. अच्छा, मैं हम पहले जरा ये बात कर ले, फिर आयशा हम क्वेश्चन नंबर 4D पे आते हैं। Okay, sir. ठीक है। अच्छा, और बाकी लोगों Yes. को जिसको भी क्वेरी है क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 4 में किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज डू आस्क हु इज दिस डेल, काइंडली either tell me your name or just because I can't mark any one under the name of Dell. I don't have anyone who is Dell over here. Okay, anyways, this is a mass distribution. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। Any issues, guys? No, sir. अच्छा जनाब, दैट्स ग्रेट। अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो ये सिर्फ बताने का मकसद और क्लास में डिस्कस करने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि आप एग्जाम्स में सिर्फ मेहनत करके अपने पेपर को या अपने सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते। यू नीड टू बी working on your homework, you need to be working on your attendance. That means you need to be present in the class. Then you have to be doing your classwork and homework properly. Then you need to be very participative in the class, as whenever I ask you to open up your camera or anything, you should be doing that. Okay, the class participation marks is totally in my hand. Although all my instead of attendance, all the marks is in my hand. अगर आप जिस तरह से मैं काम को कहूंगा वैसे नहीं करेंगे तो obviously you're not gonna to be passing the exams or passing anything over here. Are we good till here? Any issues? No, sir. Okay, that's great. Okay, so that's it. यही था हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमने ये आपको समझाना थी थोड़ी सी बात, ऑल्दो ये आपके पास ऑफिशियली भी अब आ गया है तो इसकी जरूरत है नहीं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर क्वेरीज एंड कंफ्यूजन्स अबाउट चैप्टर नंबर 4। सो जिसको जो जो प्रॉब्लम है प्लीज कंटिन्यू करें। हमारे पास एक चैप्टर एक्सरसाइज 4D से एक क्वेश्चन आ गया है, बाकी लोग भी देख लें साथ साथ। Keep your cameras on, as my camera is also on, as you can see that. चलें जी, without further ado, someone was asking, Aisha was asking me about any question. Yes, what was the question, Aisha? Sir, question number 3. Question number 3.
exercise 4D question 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आयशा कौन से वाले पार्ट में प्रॉब्लम है बेटा? Sir, second. सेकंड वाले में, पार्ट बी में, Yeah. ax प्लस bx वाले में। Yes. This is very easy. ax plus bx, sorry, plus b, bx plus ay plus by, यही है। अब देखो, मैंने ये बात पहले भी समझाई थी, जब हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो वी ट्राई टू फाइंड अ कॉमन फैक्टर इन 2 टर्म्स एंड देन वी मूव फर्दर। सो क्या पहली 2 टर्म्स में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? कोई फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है? Yes, sir. X. वेरी गुड, वेरी गुड राइट। सो अगर मैं x को कॉमन ले लूं एज अ फैक्टर, सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? a in this term plus b in this B. term, right? Are we done with this? We are good over here. Yes, similarly, can I find any Sir, Y. Y. common in these two? Yes, Aisha. Y. हाँ, Kaim, you are right, but let Aisha decide whether are we doing right or not. Okay. Yes, sir. He's जी। right. तो हमारे पास क्या कॉमन है? प्लस y कॉमन है यहाँ पर, राइट? Yes. कोई इशू यहाँ पर किसी को? तो यहाँ पर what we are left with a plus b. Yes, are we good till here? Yes. Now we have 2 terms which have the same brackets in it. So can I take the bracket as common? A plus b common आ गया यहाँ पर. So what were we are left with? X plus y. G. Aisha, any issues with this one? No, sir. Okay, that's great. Okay, now anyone has any issues with chapter number 4? I think everyone has, no one has any issue. अच्छा, तो अभी हम टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। नेक्स्ट वीक में हम एक टेस्ट लेंगे, ठीक है? Yes. Do anyone have any problem with it? No. मैं फिर से आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। सर आप इसी दिन देंगे? अगले वीक? जी, अगले वीक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। अगर आपने लास्ट टेस्ट सारे दिए हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से टेस्ट होगा। यस सर, पता है। बस वैसे ही होगा आपका। You have to be solving in your copy and then you have to send the picture on the given test, right? एक्सक्यूज मी सर। जी बोले हसन। सर क्वेश्चन नंबर 7 का आप मुझे सी समझा सकते हैं? 4C, एक्सरसाइज 4C का। ओके, exercise 4C question number 7 in part C. So exercise 4C question 7 part C, right? ऐसे ही है। It says 9h square upon 100 minus 16k square
And the question says factorize each of the following. Right, Hassan? Yes, sir. तो हसन, क्या आपको इसमें कहीं भी कोई आइडेंटिटी में फैक्टराइज होता हुआ लग रहा है ये? No, sir. नहीं लग रहा? अगर मैं बोलूं नहीं. कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में बंद हो रहा है, विच इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, याद आ गया? सर लेकिन होगा कैसे? यहाँ तक लग रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ए और बीच में माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है. हो रहा है. तो हमें इसके रूट्स निकाल लेने चाहिए. जिस तरह हम Yes, sir. क्या आएंगे रूट, जरा देखते हैं. मेरा कहना है कि इसके तो निकाल लेंगे. आप क्या आएंगे भाई हसन? पहले वाले के मैं बताता हूँ आपको, सेकंड वाले के आप बताएं मुझे. जी हसन. सर 116 के. नहीं नहीं, सिर्फ 16 के बताओ. 16 का रूट क्या आएगा? 16 के स्क्वायर का रूट क्या आएगा? सर 4. 4. और के स्क्वायर का क्या आएगा? के स्क्वायर का सर ये नहीं आता. अरे के स्क्वायर का के होगा, के इंटू के स्क्वायर बनेगा ना. ओके सर. अगर मैं के पे स्क्वायर लगाऊंगा तो के स्क्वायर बन जाएगा वापस. ओके सही सर. है. अच्छा चलो, सही. अब यहाँ पर अगर मैं होल स्क्वायर करूँ और सब ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो है ना, हमें इसका रूट लेना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले हमारे पास क्या है? 9 का रूट क्या हो जाएगा? जी 9 का रूट क्या होगा? सर 9. 3. 3. सर 3 सॉरी. अपॉन को अभी छोड़ देते हैं. h का रूट क्या होगा? h स्क्वायर का, सॉरी. H. वेरी गुड. जी हसन, कोई मसला यहाँ पर? नो सर. 100 का रूट क्या होगा? 10. सर 10. वेरी गुड. तो आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस सर. क्या हो जाएगा ये? 3h अपॉन 10 माइनस 4k इंटू 3h अपॉन 10 प्लस 4k. आ गए हमारे पास दो रूट्स. फैक्टराइज हो गया ये. यस सर. जी, किसी को कोई और प्रॉब्लम? Sir, question number 10 of 4B. क्वेश्चन नंबर 10 और 4b हम डिस्कस करते हैं. Sir, part B. क्वेश्चन नंबर 10 और 4b पार्ट बी. ठीक है. अच्छा, उससे पहले जरा सा अपना आप लोग जरा अपनी अटेंडेंस दे दीजिए क्विकली. अनाबी और नदीम. Present, sir. दुआ खान. Present, sir. ईमान अदीब. ईमान अदीब एब्सेंट. अच्छा जी. हसन अब्बास मीर. प्रेजेंट सर. हुदा दिलशाद. Present, sir. इकरान बाबर. Present. लाइबा जावेद. Present, sir. मिर्जा अब्दुल्ला. एब्सेंट मिर्जा अब्दुल्ला. मोहम्मद अनस अली. उमैमा वकार.
कायम मिर्जा, कायम अभी तो था यहाँ पर, क्या हुआ? अच्छा जी, उमर अहमद, रिदा सना, Present, sir. उमर उमर आ गया? नहीं, उमर अभी भी बोल रहा है। ज़यान, प्रेजेंट सर। आयशा सिद्दीकी, Present. Mirza Abdullah is absent, Umayma Waqar is absent, सर and Iman Adib is absent. जी सर अनस कह रहा हूँ वो वेटिंग रूम में। जी, अनस को मैंने जो है अपना एंटर कर लिया है, and even I have ओके marked him present. सही सही। चले जनाब, क्वेश्चन नंबर 10B लेते हैं, एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। जी, expand each of the following: 5x minus 7y into 5x प्लस 7y, और फिर क्या है साथ में माइनस 2 टू द पावर ब्रैकेट x माइनस 2y का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा जी, अब यहां पर देखिए कि हमारे पास दो आइडेंटिटीज लग रही हैं। जी, ये बात समझ आ रही है सबको कि दो आइडेंटिटीज लग रही हैं हमारे पास? यही आइडेंटिटी, ये तो एक फैक्टराइज हो रही है ना यहाँ पर। अगर हम इसको वापस लाएं तो ये एक्सपेंशन है इसकी। Who asked this question? I don't remember. Anabia? I Okay. Sir, Anabia. ये बात समझ आ रही है कि ये इसकी एक्सपेंशन है। फैक्टराइजेशन की का अपोजिट क्या होता है? एक्सपेंशन, राइट? sir. Right. तो फैक्टराइजेशन, इसको क्या करना है? हमें एक्सपैंड करना है। दैट्स व्हाट इट सेज। और हमने आइडेंटिटी सीख ली है, तो अब क्या ये आइडेंटिटी में बंद हो रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी वाली। देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म विद अ नेगेटिव साइन, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म विद अ पॉजिटिव साइन, ऐसा ही है। Yes, sir. तो क्या मैं इसको ऑटोमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। जी, Yes. ऐसा ही है, कोई मसला है यहाँ तक? Yes. अच्छा जी, No, माइनस sir. 2, ये 2 अपनी जगह रहेगा। अब मैं एक ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे, अच्छा, अब इस ब्रैकेट को एक मिनट के लिए भूलते हैं यहाँ पर। अब ये वाला जरा देखें कि x माइनस 2y होल स्क्वायर, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? सेकेंड आइडेंटिटी। जी ना गया? Sir, I don't know. You don't know? Okay, I'll write it down over here. A minus b whole square equals to a square, ये इस वाले के लिए, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। Yes, sir. याद आ गया? क्या ये ऐसा ही है? Yes. तो क्या मैं इसको, अब मैं सिर्फ इस ब्रैकेट को इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और ये ब्रैकेट्स मैंने इस वाले ब्रैकेट्स की जगह लगा दी क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था बाहर। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी? x, दूसरी टर्म क्या है? 2y, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म आएगी x और यहाँ पर आएगी सेकंड टर्म, राइट? और यहाँ पर आएगी सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर ले लेंगे आगे जाके। क्या हो गया हमारे पास? 25x स्क्वायर माइनस 7 7 49 y स्क्वायर
जी अभी गुड टिल हियर आ गया। Yes, sir. -2 ये हम ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी हम इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू वाई इज एक्स वाई, और प्लस वाई स्क्वायर विल बी, सॉरी 2 स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, राइट? कोई मसला यहाँ तक No. क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ब्रैकेट से सॉल्व हो जाएगा। 2 जो है वो सॉल्व हो रहा है ब्रैकेट के साथ, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। 49y स्क्वायर यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो एज इट इज उतार देंगे। -2 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम -2x स्क्वायर, -2 into -4xy will become +8xy. Yes, Yes. and -2 into -4x square y square will become -8y square. जी यहाँ तक कोई मसला बना दिया? और किसी को भी No, sir. मसला है तो बताइए। जी is there any confusion or any theory about this? So 4B का 7 and question number 9. Question number 7 and question number 9. अरे पहले ये तो होने दो। Time I don't know about that कि whether it is going to be on your YouTube channel or not, school के, but I know this कि आप अभी जो है इसको properly लें class को, तो that will be beneficial for you. Anyways, let's continue with the question. अच्छा जी क्या कहते हैं हमारे पास कि 25, अच्छा ये देखें हम कि x स्क्वायर और 25x स्क्वायर दोनों सिमिलर टर्म्स मिल गए, लाइक टर्म्स आ गए हमारे पास। Yes. जी ऐसे ही है, लाइक टर्म्स में देख लें क्या हो रहा है, प्लस माइनस, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर पॉजिटिव रहेगा। 25 माइनस 2 इज 23x स्क्वायर। अच्छा जी फिर हमारे पास y स्क्वायर की टर्म्स जो है वो सिमिलर है, माइनस माइनस प्लस करेंगे, है ना? Yes, 49 प्लस 8 क्या हो जाएगा, -57, माइनस माइनस प्लस किया हमने, ऐड किया है और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है, y स्क्वायर। कोई मसला आ गया? No. Great. और the last term which will be just write it down as it is will be 8xy. That's it. And this is your answer. This is how you expand and simplify any of the question. Okay, sir. Clear? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? Okay, that's great. Okay. हाँ जी हसन, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? Sir, 4 exercise 4B का question number 7 and question number 9. यार क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने एक्सप्लेन किया था, क्लास में भी किया था, मतलब एज एन आफ्टरवर्ड्स भी किया था, मतलब दूसरी दफा भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सिंपल सा है हसन, ये देखो यहाँ पर कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर, चलो एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं तुम्हें। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7A, राइट? मैं एक्सपैंड पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत आसान है, 1/5A प्लस 3B होल स्क्वायर। तो असल ये देखो कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो अगर मैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी देखूं, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए असल, इस सब के लिए आपको 3 आइडेंटिटीज हैं वो याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं हुई है अभी तक, तो प्लीज गो थ्रू दैट अगेन एंड
try to understand and learn them. Okay, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, उसका होल स्क्वायर है, ऐसे ही है जी हसन? यस सर। अच्छा जी, तो फर्स्ट टर्म का तो मैं इसको आराम से आइडेंटिटी से ओपन कर सकता हूँ। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। अब मेरी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या है? 1/5a फर्स्ट टर्म आ गई, ऐसे ही हो रहा है। सेकंड टर्म क्या है? जी सर। 3b और यहाँ भी 3b, कोई मसला? अब बस इसको एक्सपेंड कर देंगे 1/25a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 3 जा 6/5ab और 5 2 3 3 जा 9b स्क्वायर। सर हम 2 को 1/5 a वाले ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 1/5a से मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि when there is nothing in between the numbers or so that means this they are multiplying. BODMAS rule याद है? यस सर। BODMAS rule में b का मतलब होता है ब्रैकेट्स, o का मतलब होता है ऑफ। जी, o का मतलब होता है ऑफ, राइट? यस सर। तो वो जो ऑफ है ना वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? ये ऑफ हो रहा है ब्रैकेट के साथ और ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में ऑफ हो रहे हैं, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट? यस सर। आर वी गुड टिल हियर? जी सर। कोई मसला? तो आप इसको एक्सपेंड नहीं। करेंगे जी। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, क्या है क्वेश्चन? इसके बाद हमारी क्लास भी खत्म हो रही है। एवरीवन रीजॉइन द क्लास फॉर द सेकंड वन, जो कि हमारी है आपके ऑफिशियल क्लास है नेक्स्ट वाली, बट यू हैव टू बी ज्वाइनिंग आफ्टरवर्ड्स, ठीक है जी? अच्छा जी, क्या क्वेश्चन नंबर 9? अब देखो 9 भी इसी तरह का है, ये देखो कहाँ गया, ये देखो 9 इज एग्जैक्टली लाइक 10b का फर्स्ट पार्ट, ये देखो, ये देख रहे हो? 9 में आपके पास कोई भी क्वेश्चन उठाए, एक टर्म पॉजिटिव के साथ है ब्रैकेट में, दूसरी टर्म दूसरे ब्रैकेट में नेगेटिव के साथ है। समझ आ रही है बात हसन? यस सर। यस सर। तो इसी तरह से ओपन हो जाएगी कि फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, ये वाले कहाँ गई, ये वाला हमारी आइडेंटिटी खुल जाएगी। तीनों आइडेंटिटीज लिख दी मैंने, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकंड आइडेंटिटी और ये थर्ड आइडेंटिटी। ये थर्ड आइडेंटिटी से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ठीक है? यस सर। और अगर फिर भी कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके सर। ठीक है? इज दैट क्लियर? यस। अच्छा जी, कैन एनीवन प्लीज टेल मी कि which chapter from book 1 we were supposed to be doing? Just go through your syllabus and tell me please. Sir, chapter number 13, perimeter and area of plane figures, and chapter number 14. 13 and 14 we were supposed to be doing from book 1, and Yes. 4 and 5 were supposed to be doing from book 2, right? 4 and chapter number 4 and Yeah, 6. 4 and 6, okay, Yes. Yes, sir. ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 and 14 और तो कोई चैप्टर नहीं था? Only 4 chapters I have to make you write. यस। Okay, that's pretty less. Anyways, so we will be starting with chapter number 13, ठीक है? और chapter number 13 में हमने start करना है from book 1. So in the next class, you guys take out your book 1 and फिर से एक announce कर दें कि we will be taking test of chapter number 4 in the next week of book 2, okay, as we are done with it. ठीक है जनाब? Sir, on which day? That will be announced now, don't worry about it. Okay. ठीक है? You will have a plenty of time for that.
to anyone at any time you can solve it, but उसी दिन में आपने Okay. सबमिट करना होता है, ठीक है ना, as you know it. ठीक है जनाब, तो हम यहाँ पर क्लास को एंड कर रहे हैं. आप 5 मिनट्स बाद क्लास को फिर से रीजॉइन करिए and we will be starting our next class with chapter number 13 of book 1. Okay, Sir, 5 minutes बाद join करना है. क्या कह रहे हैं? 5 minutes बाद join करना है. जी 5 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लीजिए. इट्स 11:40, आप 11:45 पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. Okay, sir. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.